So, okay, children, let us move further now. In this lecture, I'm going to discuss about the economic activities which takes place by men and women. In the previous lecture, I was telling you about the various kind of economic activities, side by side, the activities which are performed in the various sectors. Now, in this topic, I'm going to deal with the activities which are performed by men as well as women, the differences between the two in the activities which they perform. So, let us continue now. Children, as we know, there are various reasons in which the division of labor has been proved between men and women in the family. Women, they perform the domestic chores, the household works, and mostly the men, they are outside the home performing the various kind of activities. They are in the fields. Again, we go back to the example of Sakal and Vilas. As you know, Sakal's mother, she was busy at home doing the various kind of works, looking after the children, and his father, that is Bhuta Singh, he used to cultivate the lands and sell the products in the market, and he used to earn the money. Okay, so whatever the work was performed by Sheila, she was not paid for the services which she was doing at home. Same is the condition, the work which your mother does at home, she is not paid for that. She looks after the household chores, she raises the children at home, but does your father pay for whatever she is doing? No. On the other side, Bhuta, that is Sakal's father, he earns money. He earns money, and after that he spends that money rearing his family. And in both the cases, we have seen that women are not paid for their services which they do at home, and the household work which is done by women, it is not recognized in the national income also. जो भी काम आपके घर में लेडीज करती हैं वो आपकी नेशनल इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं करती है. इट इज़ नॉट बीन रिकग्नाइज्ड, इट इज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड इन द नेशनल इनकम. On the other hand, we'll take the example of Vilas. Vilas' mother Geeta, she earns an income by selling the fish. So in such kind of work, the women are paid for the work which they are doing. When they enter the labor market, जब वो बाहर जाके women काम करती है उसके लिए उसको पैसा मिलता है. ठीक है, उनकी earnings in comparison to the male counterpart, आदमियों के से compare करेंगे, it is determined on the basis of education and skill. इनकी जो पेमेंट है वो विमेन के एजुकेशन और स्किल के बेसिस पर होती है. उसके बाद आप देखोगे कि एजुकेशन जो है, एक एजुकेशन ही ऐसा जरिया होता है. एजुकेशन इज ओनली द मीडियम विच हेल्प्स द इंडिविजुअल टू मेक हिज लाइफ बेटर. साथ ही साथ इट ऑल्सो मेक्स बेटर द यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विच इज़ अवेलेबल टू हिम. एजुकेशन और स्किल ये दोनों ऐसी चीज़ हैं जो कि इंडिविजुअल की मार्केट में अर्निंग डिसाइड करती है. आपकी जैसी एजुकेशन है, आपके पास जैसी स्किल है, उसी के बेसिस पे आपको मार्केट में अर्निंग्स मिलती है. इफ़ यू आर हाईली क्वालिफाइड, potential you are going to get good earnings. If you are not so much qualified, you are not going to get so much of salary or pay package in the market. You are not going to earn so much in the market. So majority of women आपने देखा है, they have a very merged education, low skill होती है उनकी. So women जो है हमेशा in comparison to men they are paid low. So most women they work, ज़्यादातर आप देखोगे विमेन उसी जगह काम करती हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है. ठीक है ना. एंड वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोडक्शन, उनके लीगल प्रोडक्शन के लिए भी जो वेरियस एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत कम देखने को मिलती है. और इससे पहले आजकल आपको जॉब सिक्योरिटी विमेन की मिल जाती है क्योंकि लॉ बना हुआ है, लेकिन इससे पहले जब लॉ नहीं था तो यही विमेन जो है जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पे भी उनको काम करना पड़ता था. एंड साइड बाय साइड उनकी एक्टिविटीज़ में कोई उनका लीगल प्रोडक्शन नहीं था. सो एम्प्लॉयमेंट जो इस सेक्टर में थी वो कैसी थी, इरेगुलर थी, विमेन की लो इनकम थी, और इसी सेक्टर में वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती थी विमेन को.
जैसे मैटरनिटी लीव है, चाइल्ड केयर है, बाकी जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, दोज वर ऑल्सो नॉट अवेलेबल देयर। लेकिन आप विमेन को, दूसरी विमेन को कंपेयर करिए, जो विमेन हाईली क्वालिफाइड होती हैं, उनके पास स्किल्स भी होती हैं, दे आर पेड एट पार विद द मैन, एंड उनको जितना मैन को पे मिलता है उतनी ही विमेन को पे मिलती है। आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, जो आपके घर में मेड्स काम करने आती हैं, आप देखिए ना तो उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी है, कोई रेगुलर पे ऑफ इनकम भी नहीं है, आप कोई उसको मैटरनिटी लीव भी इतनी ज़्यादा नहीं देते हो, ना उनके बच्चों की देख रेख होती है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन वहीं पे जो दूसरी विमेन जो हाईली क्वालिफाइड होती हैं, स्किलफुल होती हैं, उनको मैन के बराबर ही तनख्वाह दी जाती है। इफ़ योर फादर इज़ वर्किंग इन एन ऑफिस, आप देखोगे वहाँ पे ऑफिस में अगर उनके साथ फीमेल काउंटर पार्ट है तो उनकी भी सैलरी उतनी ही होएगी जितनी तुम्हारे फादर की है। सो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, आपको ऑलरेडी पता है व्हाट आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टीचिंग एंड मेडिसिन ये सबसे ज़्यादा विमेन को अट्रैक्ट करती हैं। कुछ विमेन अब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, ज़्यादातर आप देखोगे विमेन जो है टीचिंग जॉब में जाती हैं, मेडिकल में ज़्यादातर देखो गर्ल्स ज़्यादा जाती हैं। कुछ विमेन जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में भी जाती हैं और भी सर्विसेज में जॉब में जाती हैं जहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक कॉम्पिटेंस होता है। जैसे आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ करियर, ठीक है, क्या लेना चाहते हैं, तो मोस्टली आप देखोगे गर्ल्स को दे विल से दैट आई वांट टू बी अ टीचर, या आई वांट टू बी अ साइंटिस्ट, या आई वुड लाइक टू गो इन मेडिकल फील्ड या some scientific field and all. Why? Because there is a job security over there, safe surrounding is there. So this much is for today. Now tomorrow we are going to start with another topic, that is quality of population. Till then, goodbye.